Loving greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी लोगों को प्रेम पूर्ण अभिवादन। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, we are listening the word of God. हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। The last episode and previous episodes, पिछले एपिसोड में और उसके पहले के एपिसोड में and I was speaking to you all the word of God. और जैसे मैं आप सभी को परमेश्वर के वचन में से बता रहा था, This is from the Bible. ये तो बाइबल में से है। There is a power in the word of God. परमेश्वर के वचन में सामर्थ होती है। These words are not ordinary word. ये वचन तो कोई साधारण से शब्द नहीं है। These are all the word of the Almighty God who created the whole universe. सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ये वचन हैं, जिस परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि बनाई है। This word has been given to us by God. ये वचन तो परमेश्वर ने हमें दिया है। He commanded us to meditate this word day and night. उसने हमें आज्ञा दी है कि हम दिन और रात इस वचन पर मनन करते चले जाएं। Because क्योंकि there is a lot of power of God in this word. इस वचन में परमेश्वर की बहुत सामर्थ है। When you read this word, जब आप ये वचन पढ़ते when you हैं, hear this word, जब इस वचन को सुनते when हैं, you accepted this word, जब इस वचन को स्वीकार करते हैं, then what will happen? तो फिर क्या होता It है? will get into our heart ये हमारे हृदय में जाता है and we believe. और हम विश्वास करते हैं। Believe in the heart. हमारे हृदय में हम विश्वास करते हैं And immediately after that we use our mouth to talk about that word. उसके तुरंत बाद हम अपने मुंह का उपयोग करते हैं कि उस वचन को बोलते चले जाए। हम इस वचन को बोलते हैं The power of God will explode from that. और उससे परमेश्वर की सामर्थ्य निकलती है। That Bible says, और बाइबल कहती है, if you read Romans chapter 10 verse 10, अगर आप रोमियो अध्याय 10 वचन 10 पढ़ते हैं, it says like this. ये इस तरह से कहता है, For with the heart one believes unto righteousness, Hearts one believe unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. but the mouth confession is made unto salvation. रोमियो 10:10 क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। So the same word when you hear, we believe it in the heart. तो यही वचन जब हम इसे सुनते हैं तो हम अपने हृदय में उस पर विश्वास करते हैं, अपने मन में इस पर विश्वास In करते the हैं। heart we believe, yes, this is God's word. अपने हृदय में हम विश्वास करते हैं कि हाँ, ये तो परमेश्वर का वचन है, ये विश्वास करते हैं। Then we speak out this word with our mouth. और फिर हम अपने मुंह से इस वचन को बोलते हैं। Here it says you confess that word. यहाँ ये कहता है कि तुम उस वचन का You अंगीकार करते speak हो, that word. तुम उस वचन को बोलते हो। When you speak that word, जब आप इस वचन को बोलते हैं it will bring salvation. तो ये उद्धार लेकर आता है। This brings salvation. ये उद्धार लेकर आता है। Not only the salvation केवल उद्धार ही नहीं, from the sin, पापों से उद्धार, anything what you say from your mouth, it will happen. जो कुछ भी आप अपने मुंह से कहेंगे वो होते चला जाएगा। That much power is available in this. That's the power, the word of God. परमेश्वर के वचन में यही सामर्थ उपलब्ध है। Bible says, बाइबल कहती है, this word of God, परमेश्वर का ये वचन, Hebrew chapter 4:12 says to us, इब्रानियों 4:12 हमसे ये कहता है, it says it is like this. ये इस तरह से कहता है, For the word of God is living and powerful The word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul piercing even to a division of soul and spirit and of joints and marrow, joints and marrows, and it discerns the thought and the intentions of the heart. discerner of the thoughts and the intention of the heart. देखिए, इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ-गांठ और गुदे-गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, this word of God, परमेश्वर का ये वचन, it is living. ये जीवित है।
It is powerful. ये सामर्थी है। It is powerful than more than double-edged sword. ये तो दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, सामर्थी है। This word of God is sword. परमेश्वर का ये वचन तलवार है। If you take this word, अगर आप इस वचन को लेते हैं same word when you speak out और यही वचन जब आप बोलते हैं from the word वचन में से which is coming out of our mouth, जो हमारे मुंह से निकलता है, it will go like a double-edged sword. ये दुधारी तलवार के जैसे जाता है। It go and pierce into the heart and division of soul and heart and mind and everything. ये तो प्राण को और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। ये तो हृदय को छेद देता है। That another thing the Bible says, एक और बात बाइबल कहती है, when this word of God we speak, जब परमेश्वर का ये वचन बोला जाता है, when it goes out of our mouth, जब ये हमारे मुंह से निकलता है, out of the mouth of God, परमेश्वर के मुंह से निकलता है, this word will never come back empty. ये वचन कभी खाली नहीं लौटता है। Bible says, बाइबल कहती है, Isaiah chapter 55 verse 11, यशायाह अध्याय 55 वचन 11, it says like this, ये इस तरह से कहता है, यशायाह 55:11 में कहता है, So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I pleased, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Praise the Lord. देखिए, ये वचन कहता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। God says, परमेश्वर का वचन कहता when है, this word of God goes out of the mouth of God, जब परमेश्वर का ये वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है, the same word we take it, and if it goes from our mouth, जब हम इसी वचन को लेते हैं और अपने मुंह से इस वचन को बोलते हैं, what will happen? तो फिर क्या होगा? The purpose for which it is sent, जिस उद्देश्य के लिए इसे भेजा गया है, it will accomplish it. ये उसे पूरा करेगा। It will not come back empty. ये खाली लौट कर नहीं आएगा, It will accomplish it, ये इसे पूरा करेगा, then only it will come. और केवल तभी ये लौटेगा। That means, इसका मतलब, my beloved, मेरे प्रिय it will लोगों, never fail. ये कभी असफल नहीं होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, Never fail. कभी बेकार नहीं होगा। There is a power in this word of God. परमेश्वर के इस वचन में सामर्थ है। Many are not aware of it. बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। They are not aware. हम इसके बारे में सचेत नहीं। Why? क्यों? Because God said, meditate this word day and night. क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि दिन रात इस वचन पर मनन करते जा। We have to pay attention to His word. हमें उसके वचन की ओर ध्यान देकर सुनना होगा। We will be, when God says something, it is final. जब परमेश्वर ने कुछ कहा तो ये अंतिम बात है, इस पर कोई विवाद नहीं है। It will never change. ये कभी बदलेगा नहीं। That's how we have to take the word of God. हमें परमेश्वर का वचन इसी रीति से लेना है, Same thing will pass on to this word. और यही बात इस वचन में पूरी होगी। Beloved, प्रिय लोगों, very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। All the blessings which is required, all been there in the word of God. जो भी आशीषें चाहिए वो सब यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हैं। सारी आशीषें यहाँ पर हैं। This word of God we speak in we take it into our heart, and then we speak it from the mind, from our mouth. और परमेश्वर के इस वचन को हम अपने हृदय में लेते हैं, और फिर उसके बाद में अपने मुंह से हम इसे कहते चले जाते हैं। Same thing we are sending to the people. यही वचन हम लोगों को देते हैं। That word we are sending to the और world. इसीलिए इस वचन को हम पूरे संसार में The भेजते purpose for हैं। which it is gone, it will accomplish it. जिस उद्देश्य के लिए ये गया है, ये उसे जरूर पूरा करता है। Beloved, is very important. ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। And also the Bible say, और साथ ही बाइबल ये कहती है, the Jeremiah chapter 23 verse 29. यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 29 में बाइबल कहती है, Is not my word like a fire, says the Lord, and like the hammer that breaks the rock into pieces. वचन कहता है, यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? You see what he says here? देखिए यहाँ पर क्या कहता है, It's not my word, it is like a fire.
क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? इस तरह परमेश्वर कहते हैं। My word is like a fire. मेरा वचन आग के समान है। It is like a hammer that breaks the rock in pieces. ये उस हथौड़े के जैसे है जो पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर This देता word है। of God, when it goes, जब परमेश्वर का ये वचन जाता है, it's like a hammer. ये एक हथौड़े के जैसे होता है। It breaks the heart, which is like a rock. ये तो चट्टान जैसे हृदय को तोड़ देता है। It will break the heart of a people. ये लोगों के हृदय को तोड़ देता है। ये उसे तोड़ देता That है। will break it. ये इसे तोड़ देता है। Then they will understand their heart. और तब वो अपने हृदय को समझ पाते They हैं all will turn to God. और वो सब परमेश्वर के पास आते हैं। Another, this word says it's going like a fire. और फिर एक और बात ये कहता है कि ये वचन आग के जैसे जाता है। Anything which is not of God, it will burn into ashes. जो भी परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये उसे जलाकर राख कर देता है। That's what God's word says. यही तो परमेश्वर का वचन कहता है। That much power is available on the word of God. परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ उपलब्ध है। Beloved brother and sister, प्यारे भाइयों और बहनों, this is God's word. ये परमेश्वर का वचन In है। one place God said, एक जगह पर परमेश्वर ने कहा, it is there in Mark chapter 11:23. मरकुस अध्याय 11 वचन 23 में कहा, It says, ये कहता है, most assuredly I say to you, मैं तुमसे सच कहता हूँ, God is saying, परमेश्वर कह रहे you हैं, hear the word. हम इस वचन को सुनते हैं। For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. You see the word? देखिए, ये वचन कहता है, मरकुस अध्याय 11 वचन 23 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। Oh, glory to God. ओ परमेश्वर को महिमा मिले। Most assuredly I say to you, मैं तुमसे सच कहता हूँ, if you says to this mountain, यदि तुम इस पहाड़ से कहो, he didn't say speak to the mountain. उसने ये नहीं कहा कि उस पहाड़ से बोले, He says say to the mountain. उसने कहा इस पहाड़ से कहे। When you say means you are giving a command to the mountain. जब आप कहते हैं तो इसका मतलब उस पहाड़ को आप आज्ञा देते हैं। Oh mountain, be removed. हे पहाड़, तू हट जा, Go into the sea. तू समुद्र में जा पड़। When you say this, जब आप इससे कहते हैं don't doubt it, whatever you say. और जो भी आपने कहा उस पर संदेह नहीं करते हैं, Believe that, विश्वास करते हैं, that whatever you said, it will happen. तो आपने जो कुछ भी कहा वो हो जाएगा। Whatever you say, it will happen. आपने जो भी कहा वो हो जाएगा। Have you heard of it? Whatever you say, it will happen. गौर से सुनिए, आप जो भी कहेंगे वो हो जाएगा। That is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। This is what we are speaking to you. आप अपने से यही तो कहते हैं, ये वचन It कहते is हैं। a hammer that breaks into pieces. ये हथौड़ा है जो पत्थर को चूर चूर कर This is देता a है। fire. ये आग है। This is a sharper than double-edged ये तो sword. दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। So powerful. ये इतना सामर्थी है, It can pierce through anywhere. ये कहीं भी किसी को भी भेद सकता है। ये तो इतना So सामर्थी much है। power is available in this word. इस वचन में इतनी सामर्थ उपलब्ध है। This is the word God has given to us. ये वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। This is the word God says meditate day and night. यही वचन है जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा कि इस पर दिन रात मनन करते रहना। What God is saying, परमेश्वर कह रहे हैं, what He has written here, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ what है, the scripture says, वचन जो कहता है, believe it, इस पर विश्वास कीजिए, accept it, इसे स्वीकार कीजिए, keep it in your heart. इसे अपने हृदय में रखिए। Let no one take away from your heart. कोई भी इसे आपके हृदय से दूर न ले जाएं। When you believe this word, जब आप इस वचन पर विश्वास करेंगे, whatever you say, तो आप जो कुछ भी कहेंगे it will happen. वो होगा, It will happen. वो जरूर होगा। Beloved, प्रिय लोगों, it's so powerful. ये इतना सामर्थी It's है। all written in this. ये सब यहाँ पर लिखा है, He has given to us. उसने हमें ये दिया है। Then Bible say, और फिर बाइबल कहती है, Psalm 109, verse 89. भजन 119 89 कहता है, फॉर एवर ओ लॉर्ड योर वर्ड इज सेटल्ड इन हेवन। You see the word? देखिए, ये वचन कहता है, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। ये सदा स्थिर है। Oh God, your word is settled in heaven forever and ever. हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, हमेशा बना रहता है। This is all the word God spoke.
परमेश्वर ने यही वचन तो बोले हैं Everything is settled in heaven. और सब कुछ आकाश में या स्वर्ग में स्थिर हो गया है। Forever it is settled. ये तो सदा के लिए स्थिर हो गया है। No change in that. उसमें कोई बदलाव नहीं है, No correction on that. उसमें कोई सुधार नहीं है। Forever. सदा के लिए, Forever settled. सदा के लिए स्थिर हो गया है, हमेशा के लिए। So how important it is this? तो फिर ये वचन कितना महत्वपूर्ण है। This word can be heard, ये वचन सुना जा सकता है, believe it, इस पर विश्वास किया जा सकता है receive it, और इससे स्वीकार keep किया जा it in सकता your है, heart, हृदय में रखा जा सकता check है it out with the mouth and speak. और इसे अपने मुंह से बोला जा सकता है And you will receive everything. और हम सब कुछ प्राप्त करेंगे। That's a powerful word it is. ये तो बहुत ही सामर्थी वचन है। We are not helpless. हम असहाय नहीं हैं। God has not kept us helpless. परमेश्वर ने हमें असहाय नहीं रखा है। There is no need to go anywhere here, there and running around the world. हमें संसार में यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं है, कहीं जाना God नहीं has है। already given to us this word. परमेश्वर ने पहले ही हमें ये वचन दे दिया है। He said, meditate this word. उसने कहा इस वचन पर मनन करना, Listen to my voice. मेरी वाणी सुनना। That's what God says. यही तो परमेश्वर ने कहा That's है what happening in this world also. God has given this word to us. और यही तो हो रहा है। इस वचन को परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। How much you love the word? आप वचन से कितना प्रेम करते हैं? Are you delighted in reading, hearing this word of क्या God? आप परमेश्वर के इस वचन को सुनने और पढ़ने में दिलचस्पी लेते हैं? Very important. ये brother. बहुत महत्वपूर्ण है। Very important, sister. ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। God said, day and night meditate this word. परमेश्वर ने कहा दिन और रात इस वचन पर मनन करते रहना। For an example, उदाहरण के लिए we'll read one word. कहिए कि हम एक वचन पढ़ेंगे, Isaiah chapter 41 verse 10. वो यशायाह अध्याय 41 वचन 10 में God says like this. परमेश्वर इस तरह से कहते हैं, फियर नॉट फॉर आई एम विथ बस। यू। देखिए यशायाह अध्याय 41 वचन 10 ये कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ। See the word? इस वचन को देखिए, What God say? परमेश्वर क्या कहते हैं? Fear not. मत डर I am with you. क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। Fear not. मत डर I am with you. क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। Who is speaking? कौन बोल रहा है? The word of God. परमेश्वर का And वचन। you are hearing जब आप इसे सुनते हैं, God speaking. परमेश्वर बोल रहे हैं, Fear not. मत डर, I am with you. मैं तेरे संग हूँ। Then next it says, और फिर आगे कहता है, be not be dismayed. तू इधर उधर मत ताक, I am your God. मैं तेरा परमेश्वर हूँ। See? देखिए Now he says, अब वो कहते fear हैं, not. मत डर, I am with you. मैं तेरे संग हूँ। That means, इसका how do मतलब you meditate this? आप जब इस पर मनन करते And हैं you say, तो आप यही कहेंगे, why should I fear? मैं क्यों डरूं? I will not fear. मैं नहीं डरूंगा Because he is with me. क्योंकि वो मेरे संग हैं। He said, I am with you. उसने कहा है कि मैं तेरे संग हूँ। You will say, तो आप कहेंगे, oh God, हे you परमेश्वर, are with me. आप मेरे संग हैं, Why should I तो fear? मैं क्यों डरूं? I will not fear. मैं नहीं डरूंगा Because God is with me. क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। Wherever you go, आप जहाँ भी जाएंगे you are saying, आप ये कहेंगे, why should I fear? God, you are with me. मैं क्यों डरूं? परमेश्वर आप मेरे साथ are हैं, with me. तो मैं क्यों डरूं? You are with me. आप मेरे साथ You are हैं, my God. आप मेरे Why परमेश्वर हैं, should I fear? मैं क्यों डरूं? When you walk anywhere, when you walk, जब आप कहीं भी जाते when you हैं, go, जहाँ भी जाते हैं, you say, I am not alone. आप कहेंगे मैं अकेला नहीं हूँ। Why you are going alone? आप जबकि अकेले जा रहे Some हैं, people ask why you are going alone. लोग कहेंगे कि आप अकेले ही जा रहे हैं, Now we say, लेकिन वो कहते or हैं, I say, मैं कहता हूँ, me say, no, I am not हम alone. कहेंगे नहीं मैं अकेला नहीं हूँ। My God, the creator of the world, मेरे परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, the one who created the whole universe, जिसने इस पूरे संसार को बनाया है, he is with me. वो मेरे साथ हैं, Oh, what should I fear? तो मैं क्यों डरूं? You say, God, आप कहेंगे I will परमेश्वर, not fear मैं नहीं डरूंगा because you are with me. क्योंकि आप मेरे साथ You are हैं, with me. आप मेरे साथ हैं, You are with me. आप मेरे साथ God हैं, is with me. परमेश्वर मेरे साथ Have हैं। you seen that? Keep on saying, you are telling it, you are understanding, you are believing that God, you are there with me, then why should I fear? आप हमेशा ये कहते जाएं, आप हमेशा इस पर विश्वास करते चले जाएं कि परमेश्वर आप मेरे साथ हैं, तो मैं क्यों डरूं? परमेश्वर मेरे साथ है, इस तरह से कहते चले जाएं। Then when you go to any place, जब आप किसी भी जगह पर जाते हैं,
You are not going alone there. आप वहां पर अकेले नहीं जा रहे Because हैं, the Most High God is going with you. सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ जा रहे हैं। He will never tell lie. वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, Because He loved you so much. उसने आपसे इतना प्रेम रखा है, He doesn't want to leave you alone. वो आपको अकेला छोड़ना नहीं चाहते हैं। When He said, I am with you. और उसने कहा मैं तुम्हारे संग हूँ, Wherever you go, तुम जहाँ भी I am जाओगे going with you. मैं तुम्हारे संग हूँ। That's what the word says. यही तो वचन कहता है। That's what God says. परमेश्वर ने भी यही कहा। How fear will come? तो फिर डर कैसे आएगा? Don't look at the world, what is जो happening. कुछ भी संसार में हो रहा है आप उसे बिल्कुल मत देखिए। No, what God says. परमेश्वर क्या कहते What हैं? God says. परमेश्वर क्या कहते हैं उसे That is देखिए। the truth. यही तो सत्य है, That is the truth. यही सत्य है That is what you have to believe. और यही आपको विश्वास करना And है। we respond to that. क्या आप इसे प्रत्युत्तर That दे means रहे we हैं? keep on meditating this क्या आप word. इस वचन पर मनन करते जा रहे हैं? I am not alone. ओ मैं अकेला नहीं हूँ, Oh God, you are there with me. परमेश्वर आप मेरे साथ हैं। If God, परमेश्वर मेरे साथ God is हैं, with us, परमेश्वर मेरे साथ हैं, who can be against तो us? मेरा विरोधी कौन हो सकता है? Who can be against? कौन मेरा विरोधी हो सकता है? No one can come against कोई you. मेरे विरुद्ध में नहीं आ सकता है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, that's the power of the word of ये God. परमेश्वर के वचन की सामर्थ है। When the word of God is there, जब परमेश्वर का वचन होता है, then God Himself is going with us. जब स्वयं परमेश्वर हमारे साथ चलते हैं, God said, I am with you. परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे संग हूँ, Not I will be with you. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा I नहीं, am with you. मैं तुम्हारे संग हूँ। In Matthew chapter 28:20, when you read it, मत्ती अध्याय 28 वचन 20 कहता है, Lo, I am with you always, even to the end of the world. देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ऐसे यीशु ने कहा, Lo, I am with you for always, for the end of the world. देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। Will God go back? क्या परमेश्वर वापस चले जाएंगे? Understand it. इसे समझ लीजिए, Meditate on it. इस पर मनन कीजिए। If God is there with us, जब परमेश्वर हमारे साथ हैं, imagine how many millions or how many thousands of angels be with Him. कल्पना कीजिए कि कितने लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उसके साथ होंगे। God is not ordinary person. परमेश्वर कोई साधारण व्यक्ति He नहीं is the है, King of kings. वो राजाओं के राजा हैं। He is the ruler over the kings of the earth. वो पृथ्वी के राजाओं के ऊपर शासक हैं, वो पृथ्वी के सारे राजाओं के ऊपर राजा हैं। The government of the universe is in Him. पूरे संसार की सरकार उसके हाथों में है। When He comes out, जब वो आते हैं, imagine how many soldiers and army and the protective forces will be around Him. जब वो आते हैं तो सोचिए कि परमेश्वर के साथ में कितनी बड़ी सेना और कितनी बड़ी सुरक्षा उसके साथ में आती है। जरा कल्पना करके देखिए। Imagine the King of Kings and the Lord of Lords, the Creator of the universe, the government of the universe, God comes. कल्पना कीजिए कि राजाओं के राजा और पृथ्वी के सारे राजाओं के ऊपर जो राजा हैं, वो परमेश्वर जब आते हैं तो उसके साथ में कितनी सामर्थ आती, कितनी सुरक्षा आती If है। He comes, अगर वो आते हैं, He said, I am with you. उसने कहा मैं तुम्हारे संग I am हूँ, going with you. मैं तुम्हारे संग चलूंगा। Lord, think of it, how many people will be around Him. सोचिए कि उसके आसपास कितनी बड़ी सेना How होगी, many angels will be around Him. उसके आसपास कितने And He स्वर्गदूत is there होंगे, with you. वो आपके साथ You हैं। are surrounded by how many thousands of angels and guardians. तो आप कितने स्वर्गदूतों और रक्षकों के द्वारा घिरे हुए हैं, इसके बारे में जरा आप सोच कर देखिए कि इतनी बड़ी सेना आपको घेरे हैं। Why should he fear? तो हमें क्यों डरना चाहिए? Why say I do have nobody? हम क्यों कहें कि हमारा कोई नहीं है? No, my beloved. नहीं मेरे प्रिय The लोगों, power of the word of God. परमेश्वर के वचन की सामर्थ, He will never say lie. वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। That's why you meditate day and night. और जैसे हम उस पर दिन रात मनन करते Think हैं, of it. उसके बारे में Take सोचिए, it all into आप yourself. इसे अपने अंदर बसने दीजिए, Understand it. इसे समझ See लीजिए, it. इसे देखिए। It's all blessings. ये सारी आशीषें A हैं, royal life. एक राजा के जैसे जीवन है। Secured life. ये तो पवित्र जीवन है, Glorious life. ये महिमामय जीवन है। No failure. इसमें कोई असफलता No नहीं, devil can come nearby. कोई शैतान आपके पास नहीं आ सकता है, No devil or demonic forces have the right to come nearby कोई you. शैतान या दुष्ट आत्माओं की कोई शक्तियां आपके पास में नहीं आ सकती हैं। When they come, जब वो आती हैं, they will look at you. वो आपकी ओर देखेंगे, All these soldiers, और ये सारे all सिपाही, these angels, ये सारे they will स्वर्गदूत, run away immediately. तो वो ये सब देखकर तुरंत ही वहां से भाग जाएंगे। This is truth. ये सत्य है, This is the truth. ये सत्य है, This is the power of God's word. ये परमेश्वर की वचन की सामर्थ है। Beloved, प्रिय लोगों, believe it. इस पर विश्वास कीजिए, Know it. इसे जानिए। The word of God. परमेश्वर का वचन, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Understood it.
और इसे I समझ hope लीजिए। you. That's why you have to read the word day and night, understand it, and meditate. और इसीलिए आपको दिन रात परमेश्वर का वचन पढ़ना है, इसे समझना है और इस पर मनन करते चली जाना है। Then you will know the truth. तब आप सत्य को जानेंगे, You will understand the truth. तब आप सत्य को समझेंगे You'll be very bold. और आप साहसी होंगे You will be successful. और आप सफल हो जाएंगे। I'll continue this मैं इस संदेश को जारी रखूंगा again. अगले एपिसोड में। Continue it in the next episode. अगले एपिसोड में मैं इसे जारी रखूंगा। Listen, my beloved. सुनिए मेरे प्रिय लोगों, Understand it. इसे समझ लीजिए। You are already blessed. आप पहले से आशीषित हैं। When God says, I am with you, जब परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ Word हूँ, of God says, I am with you, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे He is साथ हूँ, there with you. तो वो आपके साथ हैं। You are not orphan. आप अनाथ नहीं हैं, You are not alone. आप अकेले नहीं हैं। The great person of the universe सारी सृष्टि के महान सृष्टिकर्ता is there with you. वो आपके साथ में Take हैं। the word of God, meditate day and night. परमेश्वर का वचन लीजिए, दिन रात इस पर मनन Believe कीजिए। it and claim it. आप इस पर मनन कीजिए, इसका दावा कीजिए। You are not an ordinary person. आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for your unchanging word आपके कभी न बदलने वाले वचन के लिए आपका which you धन्यवाद, have spoken, जो आपने कहा है, which you have written in the scripture जो आपने इन वचनों में लिख कर दिया है, to understand you, O Lord. ताकि हम आपके वचन को समझ सके। धन्यवाद करते हैं Father, पिता, I pray मैं प्रार्थना that करता हूँ all these dear children, those who are listening this word, आपकी ये सारी प्यारी संतानें जो आपका वचन सुन रही let हैं, them come to understand ये इस बात को समझने पाएं and know you and receive you, Father, और ये आप पर विश्वास करें और आपको स्वीकार and करें enjoy the blessings of yours. और आपकी सारी आशीषों का आनंद उठाने के लिए आप मदद कीजिए प्रभु। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, We give you glory. हम आपको महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।